Yes, we have the two openers, Amin sir and Ditendra. Amin sir at the striking end, Ditendra at the non-strikers end. To start the proceedings on the bowling mark, Viresh will be starting from the VGK pavilion end. Yes, the signal coming from Sir Sachin Kundekar. Let's play. We have a medical camp, health camp organized by Anjana Police Station as well. We have the doctors from Manipal. So kindly have your health checkup when you are free. First ball. Good strike. Straight to mid-off and off the mark. Amin sir gets off the mark with a single towards the mid-off region. And the scorecard up and going. This is another excellent organization by Anjuna Police Station. Ditendra facing the first ball of the tournament. Oh, beautifully bowled this time. The ball just nipping back in. And leg by signal from Sachin Kundekar. So a single from the bat and a single in form of extra. Score moves on to 2. Ditendra yet to get off the mark. Viresh starting the proceedings for KPM subdivision. Oh, slashes and straight to the fielder at point. He puts it down. Amin gets a life early. It was straight in and straight out. Yesterday we saw Amol Sawant being dropped by Aniket and making full use of it. But in the end it was Panji subdivision who made it into the finals. Oh, lovely shot. Oh, good piece of fielding. Chance of run out this time. Fails to strike the stumps. Just a pick up and throw. Flirting with danger here, both the batters. Score moves on to 4. Oh, up and over. This is the first boundary. Just failed to time the jump. And first boundary here for Margao subdivision. Two chances in the very first over, one at the point and one at the mid-off. So fortune in favor of Margao subdivision at the moment. Oh, the ball just close to that stumps. Very well negotiated, and that brings to the end of the over. It's 8 for no loss after 1 over. We have health camp being organized by Anjana Police Station. You can have your health checkup whenever you are free. They will be there for at least 2 hours here. This tournament has been organized under Fit India movement by Government of India. And thanks to Anjuna Police Station for yet another excellent organization. The second white ball T10 leather ball cricket tournament for all Goa police subdivision level.
Videsh to bowl the second over from the Mandavi River end. Oh, played up Pishley, and that is the first dismissal. Cotton bowled. So the first wicket falling on the scorecard of 8. Viresh striking off his very first delivery. Oh, down the leg side and fumbled by the wicket keeper, trying to collect the ball with just one hand. And 2 more runs heading to the tally, a wide and a by. Score moves on to 10. 10 for 1. Extra player, Margao subdivision. Swapnesh hits to mid on, gets off the mark. So आता Swapnesh on strike now. Will be looking to get off the mark. Oh, played with soft hands on the onside, picks up a single, gets off the mark. Score moves on to 11. Losing a wicket of the very first ball of the second over, caught and bowled by Videsh. A long run up of almost 10 to 15 yards. Change in field here. Short mid wicket being positioned in catching position. With that single, score moves on to 12. Yes, a warm welcome to Sir Ashok Naik. The all-rounder in commentary box, Sir Ashok Naik. Slight delay in between the delivery. Swapnesh looking to chase that away going delivery. As far as tennis ball is concerned, Swapnesh is mind-blowing with the bat. Usually opens the innings for Bali team.
Oh, great delivery, excellent delivery from Videsh. That completes the second over. Completion of two. It's 12 for 1. I think Swapnesh wants a replacement of bat here. Viresh to continue. 12 for the loss of 1 wicket. 2 overs have been bowled. Going at 6 runs per over. Last over of power play coming up. And Viresh to continue. It's final over of his spell. Oh, good swing of the bat. And a good result as well. Making his intentions clear very early. If the ball will be in his arc, he will go. Wild swing of the bat. 16, second boundary of the innings. Short of good line delivery this time. Wicket keeper fumbles. But they don't want to take that risky single. A dot delivery in the end. Oh, cleaned him up, cleaned him up. And a second dismissal. Now Viresh strikes. So both the opening bowlers for KPM subdivision doing the damage, sending both the openers back in the hut. Rahul replaces Amin. Yes, I think the ball has just broken the bails here.
Umpire making sure that the replacement has been done without wasting much time. Viresh picking up his first. Oh, very well bowled. Quick single. Quick single. And leg by signal from the umpire. Score moves on to 17. Just 2 boundaries. Straight to mid off, quick single. And overthrow. Score moves on to 19. Oh, very well bowled. The ball just nipping back in at the last instance, and that sums up the over number 3, completion of 3 overs. It's 19 for the loss of 2 wickets. Both the openers are back in the pavilion. Rahul will be on strike. Swapnesh at the non-striker's end. 3 overs, 19 for 2. End of field restriction, so the players will be just spreading out. Adarsh will be bowling the 4th over. Yes, the home team will be playing the next match with Australia jersey. सबसे पहले देखने के लिए Adarsh will be bowling हमारे from चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट and up goes the finger. Up goes the finger this time. Rahul departs. So this is a good start after winning the toss, electing to field first, and 3 top order batters of Madgaon subdivision back in the pavilion as the new batter. Rajendra Prabhudesai, the new batter. Rahul departs, caught behind. So a point of concern here. Point of concern for Madgaon subdivision after being put into bat. They are 3 down in just the first 3.1 overs.
This is not good delivery for the new batter. A wide signal. Score moves on to 20. As we have Rohit Naik, the official scorer, the BCCI affiliated scorer. Full toss and he misses. A scoring opportunity. He misses on a scoring opportunity. Find the fielder at the point. Score moves on to 21. And Rajendra Prabhu Desai gets off the mark. Swapnesh on strike. Oh, good shot. But there is a protection at deep extra cover. And this is good running between the wickets. Swapnesh pushing Rajendra for the second. A good sense of urgency. They know that boundaries are not easy to come on the surface now. So why not convert single into twos and keep the scoring. Again, too much width outside the off stump. Second wide of the over. (23). Oh, good shot. Third man, will he be cutting off it? No, it beats him. And another boundary. Score moves on to 27. Swapnesh cutting loose now. Swapnesh likes width and cashing in, throwing the kitchen sink over it and gets a boundary. Yesterday, Panaji subdivision beating Petnam subdivision and entering the finals. Aniket Parab earning the man of the match for his quick fire. 20 balls, 40 runs, chasing 93. Looking to play late, but this time the ball just beating the bat and into the wicket keeper's gloves. Score stays on 27. I think Swapnesh will have to play a long inning if their team has to put a good total on the scorecard. And he needs a support from Rajan from the other end. Slashes hard, but this time too much wide outside the off stump. Once again, wide signal from the umpire. So Rajendra Prabhudas, I remember playing last year when North District and South District T20 tournament was organized by Old Goa Police Station. Short ball, a deft touch, backward point region, quick single. Score moves on to 28. And that completes the fourth over. Completion of 4, it's 28 for 2. Going at 7 runs per over. And 29. Uday to bowl the fifth over. Again a play and a miss, this time from Swapnesh. Uday bowling his first over.
Swapnesh. Dot. First ball dot. The ball keeping low, quick single by Swapnesh. That brings Rajendra on strike now. Score moves on to 30. Dot delivery this time. Oh, cuts it and over the wicket keeper's hand. Good covering of the ground from the third man. And just a single. Swapnil picks up a single. Score moves on to 31. Runs. This is the fifth over. And I think they are somewhere behind on the run rate. They need to get it up. Swapnesh looking to hit the ball hard and not getting the timing right, but will definitely get a single over there. Oh, 2 runs. Risky. And up goes the finger. Swapnesh was not ready for the second, but sacrifices his wicket. And another wicket down here. Top 4 batters are back in the pavilion. And just a fifth over in progress. Good piece of fielding and good throw. Right on the target. New batter Damodar. Damodar will be on strike. Oh, good shot. Oh, through the legs. And looking for the second. This time Damodar's call. And making it easy in the end. 33. Completion of 5. It's 33 for the loss of 4 wickets. And it will be a change in commentary box. Over to Sir Ashok Naik for the next 5 overs.
हेलो, थैंक यू तुषार। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ मैदान पर और छठे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी करते हुए आदर्श सामने से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर और सामने बैटर है दामोदर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए। हाफ वॉली पर लेकर इस बार एक सुंदर शॉट ऑफ साइड पर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद चली गई, गेंद बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट बल्लेबाजी में सामने स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार राजेंद्र प्रभु देसाई सामना करते हुए अगली गेंद का आदर्श अपने बॉलिंग बार पर सामने से दूर वाले छोर से एक बहुत ही शानदार शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 4 रन के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और मान्यवर कक्ष में आदरणीय सर प्रशाल देसाई जिनका आगमन होता है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। और फिर से एक बार स्लाइस के गेंद को ऑफ साइड पर डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते एक अच्छा थ्रो सामने विकेट कीपर के हाथों में, और 1 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है टोटल 41, 41 रन 4 विकेट पर। खेल चलता हुआ चौथे ओवर का मैदान पर। सामने स्ट्राइक एंड पर दामोदर, इस बार निश्चित रूप से बेट हुए गेंद पर बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद के लाइन से पूरी तरह से चकमा खा गए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर है, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग अप पर, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर। अच्छी गेंद इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद उतनी दूर नहीं थे बिल्कुल, जब तक विकेट कीपर आते गेंद को फील्ड करते। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, एक सिंगल और बनता हुआ स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा टोटल 42 रनों पर पहुंचता हुआ। बल्लेबाजी कर रहे सामने टॉस जीता केपीएम कांकोणा सब डिवीजन क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और मड़गांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को मौका दिया। T10 का मुकाबला मैदान पर जारी। इन 2 टीमों के बीच में 2 बैटर मैदान पर दामोदर और राजेंद्र प्रभु देसाई। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ रोहित नाइक पूरी स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, और तुषार नाइक और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत है एक बार उपस्थित दोनों टीमों का, सभी खिलाड़ियों का, और मान्यवर कक्ष में बैठे सभी आदरणीय सम्माननीय हस्ती, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। दूसरा पर्व इस टूर्नामेंट का। एक बार फिर से बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से। 7वें ओवर की शुरुआत। बॉलिंग बार पर बिल्कुल जिमखाना की ओर से उदय सेठ आ चुके हैं गेंदबाजी करते हुए। सामने बैटर है दामोदर। फुल टॉस गेंद इस बार बाहरी किनारा लेती हुई डीप कवर, लगभग थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते फील्डर, लेकिन 1 रन बड़े आराम के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में, और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 43 लॉस ऑफ 4 विकेट, 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर मैच का मैदान पर चलता हुआ।
और बहुत ही बेहतरीन शॉट, कवर पर थोड़ी सी हवा में गेंद निकली थी, जरूर कोशिश भी हुई थी कैच को पकड़ने की, लेकिन गेंद बिल्कुल उंगलियों को छूती हुई ओवरथ्रो। 1 रन, दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। हाफ वॉली पर लेकर गेंद को खेला था, कवर पर फील्डर ने कोशिश बढ़िया की थी, लगभग करीबी मामला बन सकता था अगर कैच को पकड़ते तो, लेकिन लॉन्ग अप बाउंड्री पर बैकअप और 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 45 रनों पर। इस बार तेज गेंद करने की कोशिश, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद चली गई, थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, गेंद को जब तक फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। लेग बाइज का इशारा अंपायर का और 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ से फिर से थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन पर पहुंचा। बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर मडगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम, सामने टॉस जीता केपीएम कांकोणा क्रिकेट सब डिवीजन क्रिकेट टीम ने और पहले फील्डिंग करने का, गेंदबाजी करने का फैसला किया। बैकफुट पर निकले, इस बार कट किया गेंद को ऑफसाइड पर, एक्स्ट्रा कवर पर, डीप पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते और 1 रन बनता हुआ स्कोर में राजेंद्र प्रभु देसाई के व्यक्तिगत और उसी के साथ अपने टीम के खाते में और एक स्कोर 1 रन का इजाफा होता हुआ। और सामने बैटर है दामोदर, सामना करते हुए उदय सेठ की गेंदबाजी का। थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आगे निकले थे, ऑफसाइड पर हल्के से स्टीयर करना चाहते थे, लेकिन गेंद पहले निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग पर, एक डीप स्क्वायर लेग पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है तैनात। इस बार थोड़ा सा हवा में खेल बैठे, कवर पर मौका बनेगा और इसी के साथ कैच को पकड़ा दामोदर वापस 5वें विकेट के रूप में। एक ओवरपिच गेंद तो, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा दूर से खेला था, इस बार बल्ले से बाहरी किनारा लेती हुई गेंद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर कैच का मौका बना, सफलता दिला दी उदय सेठ ने और दामोदर आउट होकर वापस 5वें विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर मडगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम का। दामोदर के आउट होने के बाद न्यू बैटर मैदान पर यासिन सिंगन गुट्टी राजेंद्र प्रभु देसाई का साथ देने के लिए। एक अच्छा ओवर, जिस ओवर में सफलता मिली, 5वें विकेट का पतन। खेल फिर से एक बार मैदान पर जो कि शुरू होता हुआ और न्यू बैटर मैदान पर जा चुके हैं राजेंद्र प्रभु देसाई का साथ देने के लिए यासिन सिंगन गुट्टी। सामने से बॉलिंग में परिवर्तन, सिद्धार्थ आ चुके हैं गेंदबाजी पर। ओवर पेज गेंद, एक लेफ्ट शॉट ऑन साइड पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर दूर है, देखना होगा गेंद को रोकते हैं या नहीं, लेकिन गेंद से दूर और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए इस चौके के साथ मडगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम के 50 रन जो कि पूरे हुए। आठवीं 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 8वें ओवर की शुरुआत और सिद्धांत का स्वागत एक बड़े शॉट के साथ, चौके के साथ मैदान पर किया बल्लेबाज ने।
इस बार मोड़ा गेंद को, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट, कलाई को उपयोग किया, गेंद को मोड़ा फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद आते हुए बैक टू बैक दूसरा चौका निकला बल्लेबाजी में राजेंद्र प्रभु देसाई के बल्ले से। कहीं ना कहीं बिल्कुल थोड़ा सा रन के लिए संघर्ष हो रहा था मैदान पर, लेकिन इस ओवर में 2 चौके के साथ स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं अपने टीम को राजेंद्र प्रभु देसाई। एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए सिद्धार्थ की गेंदबाजी का, बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर कैच, बैकफुट पर निकले, स्टोक के लिए जगह बनाए और एक शानदार शॉट, गेंद डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। लगातार तीसरा चौका बल्लेबाजी में राजेंद्र प्रभु देसाई और अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए टोटल 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर मैच का चलता हुआ मैदान पर 60 रन 5 विकेट पर। इस बार फिर से एक सुंदर शॉट ऑफ साइड पर, लेकिन इस बार फील्डर है कवर पॉइंट बाउंड्री पर, गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन, एक सिंगल के साथ खुद के व्यक्तिगत पहुंचे। 24 पर बल्लेबाजी करते हुए राजेंद्र प्रभु देसाई, यासिन सिंगनगुट्टी सामना करेंगे सिद्धार्थ की गेंदबाजी का और स्कोर इस सिंगल के साथ पहुंचा 61 रनों पर 61 लॉस ऑफ 5 विकेट। और बहुत अच्छी गेंद इस बार बल्लेबाज को बीट किया, पहला खेलना चाहते थे, आखिर में अपने बल्ले को हटाया गेंद के लाइन से और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर स्वप्निल और सामने एक बार दूर वाले चोर से सिद्धार्थ अगली गेंद लेकर आगे निकले, गेंद को ड्राइव किया, इस बार मिड ऑफ की तरफ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से आते फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते 1 रन के साथ से यासिन सिंगनगुट्टी ने अपना खाता खोला, सिंगल जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ से मडगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम का स्कोर। खेल 8 ओवर का समाप्त हुआ और 8वें ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन 62 लॉस ऑफ 5 विकेट, कंप्लीशन आफ्टर 8 ओवर, लास्ट 2 ओवर्स टू गो। आखिरी 2 ओवर का खेल मैच में अभी भी बाकी। T10 का टूर्नामेंट हंजुना पुलिस स्टेशन जिनसे और से एक बड़ा आयोजन, सुंदर आयोजन, यह दूसरा पर्व लगातार जो कि इस साल में इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का, और आज का दूसरा और अंतिम दिन। कल के पहले दिन में फाइनल में प्रवेश कर चुकी है पणजी सब डिवीजन क्रिकेट टीम, जो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, और आज के दिन का शुरू का पहला मुकाबला ये 2 बड़े टीमों के बीच में। गेंदबाजी में परिवर्तन, विदेश आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। विदेश अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने बैटर यासिन सिंगनगुट्टी और नॉन स्ट्राइकर एंड पर राजेंद्र प्रभु देसाई। 90वें ओवर की शुरुआत एक लंबे रनअप के साथ पंजी जिमखाना की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर विदेश। बहुत अच्छी गेंद, बैकफुट पर निकले, हल्के से बल्ले का मुंह खोला, गेंद चली गई वाइडिश गले की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 63 रन पर, 5 विकेट पर 63 रन। 9वां ओवर मैच का चलता हुआ। टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला केपीएम कांकोणा सब डिवीजन क्रिकेट टीम का, और बल्लेबाजी को मौका दिया मडगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम को। थोड़ा सा हड़बड़ाहट के साथ खेला इस बार, गेंद थोड़े से गुडले स्पॉट पर उछाल लेते हुए
बैकफुट पर निकले थे, गेंद को दिशा देना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। देखना होगा T10 का मुकाबला 10 ओवर में कितने रन बना लेती है बल्लेबाजी में मडगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम। आगे निकलकर एक सुंदर शॉट, लेकिन मिड ऑन पर फील्डर है तैनात, गेंद को फील्ड करते। एक रन इस बीच में राजेंद्र प्रभु देसाई अपने टीम को आगे बढ़ाते हुए 64 रन 5 विकेट पर। स्ट्राइक पर बैटर है यासिन सिंगनगुट्टी और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा एक्शन है, अच्छा फॉलो थ्रो है, राइट आर्म ओवर द विकेट। विदेश अगली गेंद लेकर पंजी जिमखाना की ओर से। बहुत ही बेहतरीन शॉट, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। बिल्कुल स्लॉट में गेंद मिले इस बार, हाफ वॉले पर बढ़िया टाइमिंग, इस बार ताकत सही थी गेंद पर और गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा बाउंड्री पर 6 रन के लिए। 70 पर टोटल आगे बढ़ा स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। यासिन सिंगनगुट्टी, बिल्कुल टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, हमेशा बिल्कुल एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस यासिन सिंगनगुट्टी का। और एक बेहतरीन शॉट इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। इस बार तेज गेंद लेग स्टंप से बाहर लाइन पर भटके, थोड़े से वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ा 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और छोटी गेंद हुक किया इस बार फाइन लेग पर, फील्डर ओ क्या छोटा मौका बना था फाइन लेग पर, गेंद हाथों से फिसली और गेंद चली गई डीप फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, हुक किया था इस बार यासिन सिंगनगुट्टी ने, फाइन लेग पर फील्डर के लिए मौका लगभग बन चुका था, लेकिन गेंद हाथों से छुट्टी हुई। 4 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 75 रन 5 विकेट पर। खेल अभी भी जारी मैदान पर 90 ओवर का। एक छक्का जरूर लगा था विदेश की गेंदबाजी पर, बाद में कमबैक भी किया था विदेश ने, लेकिन बिल्कुल किस्मत ने साथ नहीं दिया। अच्छी गेंद, इस बार गेंद चली गई गली की तरफ, खेलना चाहते थे मिड ऑन पर एक सिंगल, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, बैकअप होता मिड ऑन पर। 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, 2 अतिरिक्त रन स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ से और एक ओवर की समाप्ति हुई और स्कोर हो चुका है टोटल 77, लॉस ऑफ 5 विकेट। 77 रन 5 विकेट पर ओवर की समाप्ति होती हुई टोटल 9 ओवर का समाप्त खेल। लास्ट ओवर टू गो। सर क्या हमारे आखिरी ओवर, अंतिम ओवर का खेल बाकी। 10 ओवर का T10 का ये टूर्नामेंट हंजुना पुलिस स्टेशन जिनसे ओर से ये दूसरी बार जो कि आयोजन इस टूर्नामेंट का, एक सुंदर आयोजन, बड़ा आयोजन इस टूर्नामेंट का। आज का दूसरा दिन और पहला मुकाबला मैदान पर जारी इन 2 टीमों के बीच में। अंतिम ओवर में गेंदबाजी में परिवर्तन, कविश आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर।
अपने फील्डिंग को थोड़े से ठीक ठाक कर रहे हैं कविश अंतिम ओवर के गेंदबाजी में। और सफल हुए इस बार, बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, लेकिन फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डर है तैनात, गेंद को फील्ड नहीं करते। एक रन इससे बीच में और जुड़ गया स्कोर के खाते में। अंपायर की जिम्मेदारी के साथ सर सचिन कुंडईकर और उन्हीं के साथ सर सुजय नेत्रावलकर, ये दो अंपायर इस प्रतियोगिता का साथ देते हुए जुड़ते हुए। और इसी बीच में आखिरी ओवर और कविश अपने बॉलिंग मार्ग पर। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, देखना होगा मौका बनेगा, रन आउट का खतरा था लेकिन निशाना नहीं लगा बिल्कुल। एक रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, जब तक थ्रो पहुंचता 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में, और 2 रन बन गए स्कोर के खाते में मडगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम के। और सामने एक बार फिर से यासिन सिंगनगुट्टी स्ट्राइक पर सामना करते हुए कविश की गेंदबाजी का। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है राजेंद्र प्रभु देसाई। आखिरी ओवर का खेल जारी मैदान पर। और इस बार स्वीप किया बड़े खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद आती हुई तेज रफ्तार के साथ, गेंद बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार यासिन सिंगनगुट्टी के बल्ले से, चौका और 4 रन के साथ से मडगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम स्कोर को अपने टीम को आगे बढ़ाती हुई टोटल 84 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छे टोटल की और निश्चित रूप से बढ़ चुके हैं, एक 90-95 के आसपास का। लेकिन देखना होगा सामने कविश राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर आगे निकले। इस बार डाउन द ग्राउंड, बहुत ही बेहतरीन ऑफ ड्राइव, एक लाजवाब शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, गेंद 4 रन के लिए आगे निकले। इस बार थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, हाफ वाली पर लिया और एक सुंदर शॉट मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ के बीच, 4 रन के लिए। 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 88 88 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सामने राजेंद्र प्रभु देसाई जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, लगातार 3 चौके इस मैदान पर, जो इससे पहले बल्लेबाजी में ओवर में, और उसके बाद यासिन सिंगनगुट्टी के बल्ले से 2 शानदार शॉट। स्विप किया इस बार लेग स्टंप पर, फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार लाजवाब शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, गेंद 4 रन के लिए, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के साथ स्कोर पहुंचा 92 टोटल 92 रन 5 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। एक बार लग रहा था 60 65 70 का टोटल, लेकिन राजेंद्र प्रभु देसाई और उन्हीं के साथ यासिन सिंगनगुट्टी ने बिल्कुल अपने ठीक ठाक कर दिया, अपने टीम को एक अच्छे मुकाम पर खड़ा कर दिया। बाहरी किनारा लेती हुई गेंद थोड़ी सी हवा में, जरूर कवर पॉइंट पर फील्डर, एक सिंगल, जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन मिला स्कोर के खाते में इस सिंगल के साथ। टोटल 93 टोटल स्कोर हो चुका है, 93 टारगेट है 94 का, 94 रनों का। और खुद का व्यक्तिगत अगर स्कोर की बात की जाए तो राजेंद्र प्रभु देसाई नॉट आउट रहे, एक बहुत ही शानदार इनिंग खेले उन्होंने बल्ले जो कि मैदान पर दोनों, और ऑफ साइड पर ऑन साइड पर जो कि बल्लेबाजी की 26 रन बनाए राजेंद्र प्रभु देसाई, और यासिन सिंगनगुट्टी ने बाद में आकर 27। तो ये दो बल्लेबाजों ने बड़ी साझेदारी बनी 6ठे विकेट के बीच में, और एक अच्छा टोटल, सम्मानजनक टोटल। देखना होगा दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी, और एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाएंगे तुषार नाइक।
Extra player, KPM. KPM extra player. Yes, 93 for the loss of 5 wickets in their allotted 10 overs. Margao subdivision. Amin Naik 11 from 8 with 2 boundaries. Ditendra Naik 1. Extra player, yes please. Siddharth on strike and at the non-strikers end, Videsh. Oh, play an miss here. Dot ball. Then Swapneshwari playing 12 from 13. Yatin bowling the first over. Rahul couldn't trouble the scorer. And it was a good partnership between Sir Rajendra Prabhudesai, who batted in the middle overs, 26 from just 16 balls, strike rate of 162 with 4 boundaries. And Yasin Singh and Gutti, 27 from 11 balls, 4 boundaries and a 6. Oh, excellent delivery, excellent delivery. You can see left arm bowler, always good to see them. They were 32 for the loss of 4 wickets in 5 overs. The last 2 overs were very expensive. Flicked on the onside. Might look for a couple. Oh, just a single here. Oh, good shot over the covers. A magnificent shot. And will fetch him a boundary. Score moves on to 5. Gets off the mark as well. This has been another terrific organization from the Anjuna police station. Thanks to Prashal Desai sir and his entire unit. This is their second T10 leather ball cricket tournament. The first time it was for the North District, but this time they have made it sure that it will be for all Goa. I think due to shortage of time, a few teams are being missed out here. Full toss. And doesn't time it. He hasn't timed it. It was a boundary scoring delivery. Lucky to get away. Off the back foot, straight to the cover region. And a single, quick single here. They require almost 9.5 runs every over. 1 over 7. I think for KPM subdivision, they will have to cash in the power play overs. Yesterday we saw Panjim subdivision chasing 93. First 3 overs they were 40. And what an opening stand it was between Aniket and his partner, Aniket Parab and Yogan. Yogan Matondkar. Videsh Gaukar batting on 5 with a boundary from 2 deliveries. And Siddesh on 2 from 4.
Swapnil Naik, all the way from Kundai. As usual, player for Kundam team, Panchayat team. Inside edge, beats the short fine leg, and the outfield is lightning fast. Once it clears the 30-yard circle, you have to give up the chase. Boundary of the very first ball. Sid gets his first boundary. Yatin bowling his first over, gave away 7 runs, and now Swapnil Fatte. Oh, outside edge, third man cuts it off, and a single. Score moves on to 12. For tennis cricket, we have Prathamesh, Omkar Sawant, Milan Patil, the 2 officials, Sujay Netravalkar, Sachin Kundekar. The scoring has been updated here by Rohit Naik. And in the commentary box, along with Sir Ashok Naik, it's myself, Tushar Naik. Look down on the knee, looking to play the ball on the onside. Now the dot ball here. Two camera being utilized to cover this tournament. Swapnil Fatte with his neck delivery driven down the ground. Good piece of fielding at the mid-off because the ball was travelling with some pace. That single takes the score on to 13. Whenever you're chasing a big total, you need a good start, and the openers are looking to provide them with a very good start here. Already 13 runs they have added. Oh, this will go for a boundary. He goes aerial into the gap and a boundary. Score moves on to 17. Second over in progress. Second boundary of the over. Swapnil Fatte just proving touch expensive here. We had some very fine players who has played for Goa Police. One of them, Sir Rajendra Prabhudesai, Chandrasekhar Lokre. Played straight to the point. Slight fumble allows a single here. Krishna Volvoikar, another name that comes to my mind. Having played for Goa Police. All the way from Sakrim. Scored a century recently for the B division. End of 2 overs 18. As they are going according to the required run rate, 9 runs every over. Yatin to continue. Dondu Tulaskar also was a part of Goa Police team.
Now the ball keeping low, wicket keeper beaten, but third man will cut it off. And a bye signal from the umpire. Oh, wrapped on the leg, wrapped on the pads. Leg by signal from the umpire. Oh, played up pitchly and catch put down. Good effort by him. And 2 more runs added. One shot, in fact, so just a single. Hot and humid conditions. When you're looking for the 2, you should make sure that the first run your bat is creased properly. Otherwise, you have got already a penalty here. Not only 1 run short, but you have energy that was put in for the second run has been wasted. Sid on strike. Oh, fuller line delivery this time. Beaten all ends up. Yateen has been featuring in Royal T20 Championship. And now here for the Madgaon sub-division. Pulled on the onside and fumble by the fielder. Might get a couple. Throw to the bowler's end. A big tournament coming up, but this time it's a volleyball, all India level volleyball tournament in which international players who have played for India and also in the Pro Volleyball League will be featuring at Madgai Panchayat grounds from 3rd, 4th, 5th and 6th of May. Played on the onside, good use of the wrist here, away from the fielder, racing towards the square leg boundary. And some good footwork by the fielder, another couple of runs added to the tally. Score moves on to 25. 3 overs, 25 going at 8 runs per over. The run rate just dropping down. Good cricketing conditions over here at Panjim Gymkhana. Nice breeze blowing from the Mandav River. And here lush green outfield. Some cushioning for the fielders as well. Swinit to bowl the 4th over. So just 1 over for Swapnil Fatte.
Full toss this time. Into the gap as well, racing away from the fielder. A boundary to begin the fourth over. Not a good start by Swinith. Touching the sweet part of the bat and racing away from the fielder. A good start here in the run chase. Even though you have 93 runs on the scorecard, you cannot relax. Because this short format, the batters look to throw bat on the ball of every delivery. Even if outside edge, the ball will travel. As the ball is very new, this is just the fourth over. Beginning of the fourth over, in fact. 29 for no loss. Good partnership here for the first wicket. A foundation is being laid. Looking to hit the ball hard towards the long on. Will be cut off, but not before 2 runs being taken. Score moves on to 31. Madgaon subdivision needs to get breakthrough. Otherwise, it will be an easy run chase for KPM subdivision. Oh, goes up pitch straight to long off, and he judges it magnificently. A breakthrough that they were looking for has been picked up here. Caught it long off. Videsh departs. Yassin the fielder. Everything that Yassin has touched has turned into gold. First, on the first occasion, it was his bat, and then the ball, the catch has been taken by him. New batter Uday Sheth. But this two have put on a good partnership for 31 runs for the first wicket. After considering a boundary very early, he tries to make a comeback, getting rid of the batter. Videsh Gaonkar departs for 12 from 8 with 2 boundaries at a strike rate of 150. Sid still batting on 18 from 13 balls, 2 boundaries to his name. If you look at the average score on Panjim Gymkhana ground, it's 96 runs. First innings 79 in second in 10 overs in the last 10 matches. Still to bat Adarsh, Milind, Viresh, Rahul, Kavish, Kamlesh, Swapnil and Swapnesh. Here's a single. Uday gets off the mark with a single. Score moves on to 32. Next match coming up, Mapsa Subdivision 2. They've already dressed up, looking solid in that yellow color jersey. And I think the team wearing yellow jersey always in good touch. Chennai Super Kings, Australia. Good shot straight to the cover. Good stop over there because the ball was traveling with some pace. Appeal for run out. I think the batter has made it safe in the end. We have health camp here organized by Anjuna Police Station. If you're free, you can just check your health condition. Completion of 4, it's 33.
KPM subdivision require another 61 from 36. Required run just going up to 10 now, 10.17. Kishore Parpati. Bowling from the VG Kenim Pavilion end. Yasin Singangutti at the long off, who just got rid of the opener with a smart catch. Hit on the onside. Single. Dropped in short, just glides the ball into the gully region, picks up a single. That single takes the score on to 35. So, couple of singles to begin the fifth over. Played on the onside, good wrist work has been displayed here, and a couple of runs added to the tally. With that couple, score moves on to 37. The boundary seems to have dried up in the last 2 overs. And I think when you're chasing almost 10 runs every over, you need a compulsory boundary every over. Otherwise, the required run rate will just starting to creep up from 10 to 11, 11 to 12. Oh, good looking shot, but there is deep mid wicket in position. And he will cut it off. Outside edge. Gets a single. Score moves on to 38. .39 with a single. Sid played the ball into widest coverage and Yasin Singutti. Oh, through his legs. This time he couldn't cut it off, and a much required boundary of the last ball of the fifth over. Completion of 5, it's a 43. Going at 8 runs per over. Still the required run rate 10.2. The current run rate 8.6 though. And for the last 5 overs of the run chase, we have changed in commentary box. Over to Sir Ashok Naik. As we can see, the Mapsa Subdivision 2 team for a group photograph along with Suprashal Desai.
थैंक यू तुषार। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 43 रन 43, लॉस ऑफ 1 विकेट। ओ बोल्ड हुए उस गेंद पर। इस बार एक यॉर्कर की गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में अक्रॉस खेलना चाहते थे और दूसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होकर वापस उदय सेठ आउट होकर वापस, और उदय सेठ के आउट होने के बाद सुप्रेश न्यू बैटर मैदान पर। न्यू बैटर मैदान पर अंपायर से गार्ड लेते हुए 43 रन 2 विकेट पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 6ठे ओवर की शुरुआत और सामने यासिन सिंह गनगुट्टी दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर निकले, ढीले हाथों से खेला गेंद को ऑफ साइड पर गली की तरफ। एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और इस सिंगल के साथ सुप्रेश ने अपना खाता खोला। स्कोर आगे बढ़ा एक सिंगल के साथ 44 रन पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। 6ठा ओवर जारी, टारगेट है 94 रनों का। अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए टोटल 50 रन और इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी इस मैच का। ओवर पिच गिर, एक सुंदर शॉट हाफ वाली पर लेकर सामने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर है जो कि मौजूद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते और फिर से एक ही रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। सुप्रेश और सिद्धांत ये जोड़ी मैदान पर अभी अभी आउट होकर वापस उदय सेठ, यासिन सिंह गनगुट्टी को सफलता मिली और यासिन सिंह गनगुट्टी एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर एक 10-12 कदमों के रनअप के साथ। बैकफुट पर निकले, इस बार बल्ले का मुंह खोला, गली पर फील्डर, फिर से सिंगल। बहुत अच्छी सूझबूझ की बल्लेबाजी हो रही है। मालूम है कि बड़े शॉट नहीं लग रहे हैं तो सिंगल डबल के साथ स्कोर को आगे बढ़ा रही है केपीएम कांडकोड़ा सब डिवीजन क्रिकेट टीम। फील्डिंग करती हुई मडगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम सामने एक अच्छा टोटल रखा है। इस बार स्लोअर वन और बॉलर के पास से इस बार, और जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन इस बीच में फिर से जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। एक शानदार बल्लेबाजी रही पहले बल्लेबाजी में राजेंद्र प्रभु देसाई और उन्हीं के साथ यासिन सिंह गनगुट्टी ने, दोनों के बीच में 5वें विकेट के बीच में बड़ी साझेदारी बनी। 93 रनों का टोटल रखा, टारगेट रखा 94 रनों का और खेल अभी भी जारी मैदान पर। 6ठे ओवर का 2 बैटर सुप्रेश और सिद्धांत मैदान पर। आगे निकले, इस बार हाफ वॉली पर लेकर एक बहुत ही सुंदर शॉट ऑफ ड्राइव का, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फिर से फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन मिल गया स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 48 रन 48, लॉस ऑफ 2 विकेट। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 48, लॉस ऑफ 2 विकेट।
6 ओवर समाप्त, 4 ओवर का खेल बाकी और 4 ओवर में मैच को अभी भी जीतने के लिए चाहिए 46 रन। 11:30 से आगे रन रेट जो कि रन बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। और इसी बीच में और एक परिवर्तन मरगांव क्रिकेट टीम की ओर से गेंदबाजी में दिखाई देता हुआ। बॉलिंग में परिवर्तन किशोर कमेंट्री बॉक्स की ओर से, पंजी जिमखाना की ओर से। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद इस बार गुडले स्पॉट पर थोड़ी सी उछाल लेती हुई, बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई, पीछा किया तो ऑफसाइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का भीतरी किनारा लगा, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और तीसरा विकेट वापस से निकलता हुआ मैदान पर। 48 लॉस ऑफ 3 विकेट, 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खेल 7वें ओवर का मैच का चलता हुआ और किशोर अपने पहली गेंद पर सफलता दिलाते हुए। कमेंट्री बॉक्स में हमारे बिल्कुल एक अजीज दोस्त सर नरेश पारसेकर जिनका आगमन होता हुआ। नरेश पारसेकर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। एक अच्छी गेंदबाजी, पहले बल्लेबाजी में 93 रन, एक अच्छा टोटल। राजेंद्र प्रभु देसाई और उन्हीं के साथ यासिन सिंगनगुट्टी, 2 बैटर ने बड़ी साझेदारी बनाई और अपने टीम को ठीक ठाक कर दिया। और इसी बीच में और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। न्यू बैटर मैदान पर स्वप्निल। इस बार थोड़ा सा हड़बड़ाहट के साथ जरूर खेला, गेंद चली गई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। थर्ड मैन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, लेकिन तब तक 1 रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल बना 22 का इशारा अंपायर का और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 49 रन पर। एक 15-16 कदमों का रनअप राइट आर्म ओवर द विकेट। कलाइकॉप को क्या इस बार बड़ा गेंद को ऑन साइड पर मिड ऑन की तरफ और फिर से एक बार तेज कदमों के साथ 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर में और इस सिंगल के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए टीम के 3 विकेट पर 50 रन। तो फिर से एक बार थोड़ा सा उछाल मिलती हुई गेंद को, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में एक सफलता दिला दी और उसके बाद निश्चित रूप से एक अच्छी लाइन पर और गेंदों को थोड़ा सा जो कि उछाल भी मिल रहा है, स्विंग मिल रहा है जो कि गेंदबाज किशोर को धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर 50 रन 3 विकेट पर। बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार हाफ वाले पर लेकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? नहीं, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर तेज आते, गेंद को उठाते, गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, लेकिन एक सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर 1 रन के साथ से आगे बढ़ा 51 रनों पर पहुंचता हुआ। सामने सिद्धांत, नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्वप्निल और बॉलिंग मार्ग पर किशोर।
इस बार शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर फील्डर, फिर से एक रन। थोड़ा सा रन रेट पर ध्यान देना पड़ेगा बल्लेबाजों को, क्योंकि थोड़ा रन रेट नीचे आ चुका है। ओवर की समाप्ति हुई और एक, और इस ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 52, लॉस ऑफ 3 विकेट। खेल समाप्त हुआ टोटल 7 ओवर का। 7 ओवर की समाप्ति हुई और 7 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 52, 52 रन 3 विकेट पर। तीन ओवर का खेल बाकी है और प्रति ओवर 14 रन बनाने पड़ेंगे। 42 रनों की अभी भी जरूरत है मैच को जीतने के लिए। 18 डिलीवरीज, 42 रन। देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन, शायद परिवर्तन दिखाई देता हुआ गेंदबाजी में मैदान पर। एक बार फिर से आते हुए यासिन सिंगनगुट्टी अपने बॉलिंग मार्ग पर। 7 ओवर समाप्त हुए, 8वें ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। सामने बैटर है सिद्धांत और नॉन स्ट्राइकर बैटर है स्वप्निल। थोड़ी नीची रही इस बार गेंद, जोरदार बल्ला घुमाया था लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 8वां ओवर मैच का यासिन सिंगनगुट्टी अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सामने बैटर है सिद्धांत। टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए 94 का, 94 रनों का। ऑप्टम से बाहर गेंद, तेज गेंद जरूर थी लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइन पर भटके। वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। केपीएम कांडकोना सब डिवीजन क्रिकेट टीम के एक सिंगल, आगे बढ़ता हुआ स्कोर। और इसी बीच में एक बार फिर से यासिन सिंगनगुट्टी अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। इस बार गति में परिवर्तन, थोड़ा सा स्लोअर वन, धीमी फेंकी गेंद, जल्दी खेल बैठे सामने सिद्धांत और गेंद चले गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं। विकेट कीपर के साथ कवर पॉइंट के साथ कवर पर और कवर के साथ जो कि एक बार फिर से गेंदबाज यासिन सिंगनगुट्टी के हाथों में गेंद और वो अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने से दूर वाली छोर से। ओ, इस बार देखना होगा, बहुत ही अच्छा कैप किया विकेट कीपर ने, बहुत ही अच्छी सुंदर फील्डिंग विकेट कीपर के। निश्चित रूप से गेंद थोड़ी सी निकल जरूर रही थी और फिर से एक बार कोई रन नहीं बनता हुआ स्कोर के खाते में। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर वही पर रुका हुआ 53 पर। 53, लॉस ऑफ 3 विकेट। कहीं ना कहीं बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ओ, जोरदार अपील, सामने बिल्कुल पा गए अंपायर की उंगली ऊपर और इसी के साथ और एक विकेट चला गया। चौथे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर एलबीडब्ल्यू करार घोषित किया और 53 रन 4 विकेट पर आउट होकर वापस बैटर सिद्धांत और यासिन सिंगनगुट्टी अपने टीम को और एक सफलता मैदान पर दिलाते हुए। Yes, we have former Indian cricketer Nilesh Kulkarni also watching this match. He was a part of Indian team and I think he has one record of being one bowler who's picked up wicket of the very first delivery that he bowled for India. Warm welcome to you, sir, on behalf of Anjuna Police Station. थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, कमलेश।
यासिन सिंगनगुट्टी सामने से एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर एक सफलता हासिल करते हुए इस बार फिर से थोड़ा सा लेग कटर धीमी फेंकी गेंद और जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते अपना खाता खोला कमलेश ने एक सिंगल के साथ और इस एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 54 54 रन 4 विकेट पर 54 रन 4 विकेट पर 94 रनों का टारगेट है 40 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते और फिर से सिंगल पर ही रोक लगा दी गेंदबाज और फील्डर ने और एक ओवर की समाप्ति हुई। टोटल स्कोर हो चुका है 55 रन 4 विकेट पर 55 रन टोटल स्कोर। आने वाले सिर्फ अभी 2 ओवर का खेल बाकी है 12 गेंदों को और 12 डिलीवरीज 39 रन 12 गेंदों में 39 रन मैच को जीतने के लिए। भाई बॉलर कौन? गेंदबाजी में परिवर्तन स्वप्निल आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। 90 ओवर की शुरुआत 12 गेंदों का खेल 39 रन और स्वप्निल फटते बॉलिंग मार्ग पर। ओवर पिच गेंद इस बार लेकिन बिल्कुल गेंद के पिच पर नहीं थे गेंद के लाइन पर नहीं थे बल्ला घुमाया था लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। जिस तरह से गेंदें डॉट निकलती जा रही है निश्चित रूप से मैच थोड़ा सा दूर होता हुआ दिखाई देता हुआ। अब सिर्फ 11 गेंदों का खेल बाकी है मैच में। फिर से एक बार जोरदार बल्ला घुमाया फुलर लेन के गेंद बल्लेबाज को बीट करते हुए और विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। कवर पर और कवर के साथ एक बार फील्ड होती हुई गेंद वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर स्वप्निल एक लंबे रनअप के साथ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार बाहरी किनारा लगा गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ लेकिन एक शानदार फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। सिर्फ एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में थोड़ा सा फासला कम हो गया गेंदों और रनों के बीच का। अभी भी चाहिए 38 रन टोटल मैच को जीतने के लिए और गेंदें बची है सिर्फ 9। नौवां ओवर जारी इस इनिंग का। बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद डीप लॉन्ग ऑफ पर सीमा रेखा से बाहर। इस बार ओवर पिच गेंद हाफ वॉली पर लेकर टाइमिंग लाजवाब था इस बार और 6 बहुमूल्य रन कमलेश के खाते में 6 रन टीम के स्कोर के खाते में और इन 6 रन के साथ मुकाबला फिर से थोड़ा सा जीवित जरूर हो चुका है। यही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इसी तरह से शॉट लगाने पड़ेंगे मैच बिल्कुल नजदीक हो जाएगा। थोड़ी सी चर्चा जरूर हुई गेंदबाज के साथ और इस बार एक बार फिर से स्वप्निल फटते अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर। आगे निकले बिल्कुल रिप्ले देखने को मिला और उसी इलाके में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक बहुत ही करारा शॉट लाजवाब शॉट 6 रन के लिए।
टोटल स्कोर हो चुका है 68। 26 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए और गेंदें बची है 7 गेंदों में 26 रन। मुकाबला फिर से जीवित हो चुका है 2 बड़े शॉट के साथ। 26 रन चाहिए, आने वाले 7 गेंदों का खेल बाकी। मैच में निश्चित रूप से फिर से वापसी कर चुके हैं। इस बार थोड़ा सा स्लोअर वन गेंद ऑफ स्टंप पर, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। तो इसी के साथ 9 ओवर का खेल समाप्त हुआ। लास्ट ओवर टू गो, 6 गेंदे और अभी भी मैच को जीतने के लिए 26 रन 26 रन। आखिरी ओवर का खेल बाकी और 26 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। देखना होगा आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं। तो अंतिम ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर स्विनित, 6 गेंदे और 26 रन मैच को जीतने के लिए। लास्ट ओवर टू गो। ओवर पिच गेंद इस बार, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं आया। एक डॉट बिंदी गेंद के साथ गेंदबाजी में शुरुआत करते हुए सामने से एक बार फिर से 5 गेंदों का खेल, 26 रन। इस गेंद पर शॉट लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये मैच लगभग फंस जाएगा मैदान पर। हल्के से गेंद को खेला, पुश के ऑफसाइड पर सिलबिड़ा पर अपने फॉलो थ्रू में निकले, गेंद को फील्ड करते, लेकिन तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। आखिरी ओवर का खेल जारी। 4 गेंदों का अभी खेल बचा हुआ और 4 गेंदों में अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए टोटल 25 रन। केपीएम कांडकोणा सब डिवीजन और मरगांव सब डिवीजन, इन 2 टीमों के बीच में यह मुकाबला जारी। पहले बल्लेबाजी की 93 रन बनाए, 94 रनों का टारगेट रखा और मैच अंतिम ओवर पर चला गया। दूर दूर जमाई गई फील्ड मैदान पर। ओ बेहतरीन शॉट इस बार, डीप कवर पॉइंट, बाउंड्री पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 21 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं नो बॉल का इंतजार करना पड़ेगा। अगर बड़े शॉट लगे, वाइड बॉल के साथ अगर रन बन गए तो, लेकिन देखना होगा, क्रिकेट है, बात करना थोड़ी सी गलत बात होगी पहले ही मैच के बारे में, क्योंकि अभी भी चाहिए 21 रन और ये 21 रन बनाने के लिए गेंदें बची है सिर्फ 3 डिलीवरीज 21 रन, 73 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 4 विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। टोटल आगे बढ़ गया सिंगल के साथ 74 पर 74 रनों पर, 4 विकेट पर 74 रन, 94 94 रनों का टारगेट, 20 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। इस बार थोड़ी धीमी फेंकी गेंद, टिप्पा खाने के बाद नीचे भी रही।
और इस बार बिल्कुल कोई मौका नहीं मिला बल्लेबाज को इस गेंद को शॉट लगाने के लिए। तो और एक बिंदी गेंद डॉट गेंद के साथ अब थोड़ा सा मैच दूर होता दिखाई देता हुआ। ओवर पिच गेंद, एक सुंदर शॉट सामने बॉलर के ऊपर से ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन उससे ही उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, नॉन स्ट्राइकर इन पर हल्का सा अपील जरूर था रनआउट के लिए, लेकिन अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित 2 रन बन गए स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 76, लॉस ऑफ 4 विकेट। तो ये गेंद हल्का सा अपील गेंद निकली। तो इसी के साथ ये मुकाबला मैदान पर समाप्त हुआ। मैच को जीतती हुई मडगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम। एक अच्छा मैच रहा, थोड़ी सी बीच में बल्लेबाजी नहीं हुई और वहीं पर जो कि आने वाले मैच के लिए हम कॉल कर रहे हैं। आइए अगले मैच के लिए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। आने वाला मैच हो रहा है मापसा सब डिवीजन 2 और मडगांव सब डिवीजन। दोनों कैप्टन आइए दोस्तों टॉस के लिए जल्द से जल्द संपर्क करें। मापसा सब डिवीजन टीम 2 और